ত্রিপুরায় শাসক দল বিজেপির উপর কৌশলী চাপ বাড়িয়ে চলেছেন ত্রিপুরা মথার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা এমডিসি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। ত্রিপুরা চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে বিজেপি জোট সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। ত্রিপুরা চুক্তি বাস্তবায়নে কৌশলী চাপ বাড়িয়ে চলেছেন প্রদ্যুৎ। জোট সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক হ্যান্ডেলে লাইভে এসে প্রদ্যুৎ বলেন, বিজেপি জোট সরকারে আমাদের যোগদানের শর্ত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ত্রিপুরা চুক্তি বাস্তবায়নের লিখিত আশ্বাস। যারা আমাদের ভোট দিয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার। আমি যদি প্রতিশ্রুতি রাখতে না পারি তবে ক্ষমতায় থাকার অধিকার রাখি না। তিনি আরও জানান, এই মনোভাব তিনি ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা মথা পার্টির মন্ত্রী ও অধিকাংশ বিধায়কদের জানিয়ে দিয়েছেন। চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দেববর্মা বলেন, 18 মাস কেটে গেছে, অপেক্ষা এখনো চলছে। আমি বুঝতে পারছি সাম্প্রতিক পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার মতো ঘটনা কেন্দ্রের মনোযোগ অন্যদিকে গেছে, তবুও মনে হচ্ছে কোথাও কিছু একটা আটকে আছে। দিল্লিতে আলোচনা ইতিবাচক হলেও তৃণমূল স্তরে আর প্রতিফলন নেই। এদিন তিনি বাংলাদেশের দিক থেকে অনুপ্রবেশ নজরদারির জন্য একটি বিশেষ হেল্পলাইন চালুর ঘোষণাও দেন। এই হেল্পলাইনে নাগরিকরা সন্দেহজনক সীমান্ত অতিক্রমের খবর দিতে পারবেন এবং দলীয় কর্মীরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে আইনক ব্যবস্থা নেবেন। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের জমি ও সম্পদ রক্ষা করতে হবে। তিনি সাধারণ মানুষকে আইন নিজের হাতে না তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান। শেষের দিনে ত্রিপুরার সমস্ত সম্প্রদায়কে দলীয় রাজনীতি ভুলে রাজ্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুরোধ জানান। এদিকে অবশ্য ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা মথা জোট ছেড়ে সরকার থেকে বেরিয়ে গেলেও বিশেষ করে প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন না রাজনৈতিক মহল। কারণ ত্রিপুরা মথার ভরসায় ত্রিপুরার বিজেপি জোট সরকার টিকে থাকতে হবে। এখনো তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। বিজেপি নেতাদের কথায় ভারতীয় জনতা পার্টি সকলকে সাথে নিয়ে চলতে বিশ্বাসী। এক্ষেত্রে আমাদের ছেড়ে কেউ চলে যেতে চাইলে তাকে জোর করে আটকে রাখার প্রয়োজন মনে করে না এই দল। बनाते हैं नाम कुछ भी दीजिए, त्रिपुरा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, त्रिपुरा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, जो भी हो। अगर आप लोग यंग है और आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आप लोग बनाइए, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं अपना पैसा, खुद का पैसा भी लगाऊंगा, लेकिन मैं हेल्प करूंगा। क्योंकि अगर हमने 5, 10, 15 सक्सेसफुल त्रिपुरा को एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बना दिया, कुछ भी हो काम, आप कॉफी शॉप खोल दीजिए, आप फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा दीजिए जिसमें हम अपना पाइनएप्पल हो, बैम्बू हो, फिशरीज कर दीजिए, होम स्टे, टूरिज्म कितना बढ़ रहा है, होम स्टे कर दीजिए, कुछ भी हो आप लोग कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, आइडियाज दूंगा। अगर लोन चाहिए तो हम लोग बैठकर बात करके कहीं से लोन निकालेंगे। लेकिन अगर हमने 10-15 सक्सेसफुल त्रिपुरासास को बिजनेसमैन बना दिया या बिजनेस वुमेन बना दिया, टेक्सटाइल हो, अपना रिग्ना रीसा मार्केटिंग हो, तो ये एक इंस्पिरेशन होगा हमारे दूसरे लोगों को जो यंग है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। देखो, जब तक हम लोग सिर्फ राजनीति में कंसंट्रेट करेंगे और अपना इकोनॉमी, अपना जिंदगी को बेहतर नहीं बनाएंगे थ्रू फाइनेंस, थ्रू एजुकेशन, हम लोग गरीब ही रहेंगे। और अगर हम लोग गरीब रहेंगे तो गरीब तो बढ़ता ही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आप देख लो, यू सी, अंबानी और टाटा कभी फाइट नहीं करता, अदानी और बजाज कभी फाइट नहीं करता। दोनों अमीर लोग हैं ना, सब लोग अमीर हैं। फाइट कौन करता है? कंचनपुर में 2 गरीब लोग फाइट करते हैं, कल्याणपुर में 2 गरीब लोग फाइट करते हैं, अम्बासा में गरीब लोग फाइट करते हैं एक दूसरे से। मैं कांग्रेस करता हूं, मैं सीपीएम करता हूं, मैं मोथा करता हूं, मैं बीजेपी करता हूं। गरीब लोग ही फाइट करते हैं, गरीब लोग ही एक दूसरे का घर में अटैक करते हैं। अमीर लोग तो फाइट लगाते, आग लगाते हैं। क्यों? गरीब को बांटना आसान है, थोड़ा पैसा दे दो, फ्रस्ट्रेट करा दो। तो मैं चाहता हूं कि हमारा यंग जनरेशन अगर बिजनेस करने लगे, एजुकेशन प्राप्त करे, तो इनको इतना राजनीति नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वायलेंस कहां में होता है? यूपी, वहां में पॉलिटिक्स इतना बड़ा है क्योंकि गरीबी भी बहुत बड़ा है। बिहार देख लो, किडनैपिंग हो, मर्डर हो, रेप हो, पॉलिटिकल वायलेंस हो, बिहार में बहुत होता है क्योंकि गरीबी बहुत है। बंगाल देख लो, इतना गरीबी है बंगाल में
कि आज एक आदमी अपने भाई के घर में जाकर चाय नहीं पीता है क्योंकि वो तृणमूल का है और वो बीजेपी का है या वो सीपीएम का है। भाई भाई से बात नहीं करता। गरीबी है तो डिवाइडेड है, डिवाइडेड है तो वायलेंस है। त्रिपुरा में आप देख लो क्या मिला हमको ये वायलेंस से, क्या मिला ये पार्टी का झंडा उठाकर। आज हम लोगों का थानसा टूट गया, हम लोग एक दूसरे को फाइट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पर करें। सेकंड चीज, मैं उस दिन दिल्ली जा रहा था इंडिगो फ्लाइट में, तो एक व्यक्ति मेरे पास बैठा था। वो आकर उन्होंने कहा कि नमस्कार, मैं आपसे 1 साल से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। मैं IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, दिल्ली में भी है, त्रिपुरा में भी है। और मैं सिर्फ IAS नहीं, जुडिशरी का हो, TCS का हो, मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे अपने लोगों को भी हेल्प करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूं त्रिपुरा और आपके इंस्टीट्यूट में जाकर मिलता हूं। अगर मैं साल में 100 लड़के लड़कियां जिनको UPSC में जाना है, TCS में जाना है, जो भी हो, ऑफिसर बनना है, कंपेटिटिव एग्जाम में जाना है, अगर उनका फीस साल का 60,000 है, उन्होंने कहा 60,000 है, तो अगर हम ADC से और मैं अपने पॉकेट के पैसे से भी, मेरे NGO के थ्रू से हम 35,000 रुपीज सब्सिडाइज कर देते, तो स्टूडेंट का पूरा जो कोचिंग होगा वो 25,000 होगा। और अगर कल ये पास होंगे, कल ये ऑफिसर्स बनेंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स बनेंगे, TCS बनेंगे, IAS बन गया, तो फायदा तो हमारे कम्युनिटी का है। कोई भी पार्टी में इनके माँ बाप हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आई वॉन्ट आवर पीपल टू कम अप। और अगर ये मैंने किया तो ये स्टेट के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है। और इसमें पॉलिटिक्स का कोई बात ही नहीं है। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हो, कोचिंग सेंटर्स हो, एजुकेशन हो, आई वॉन्ट आवर पीपल टू कम अप। आखिर में मैं आई वॉन्टेड टू टेल यू वन मोर थिंग। ये जो बांग्लादेश का इशू है, देखिए, मैंने अपने त्रिपुरा मोथा को बोला है कि आप लोग सेंट्रली एक हेल्पलाइन नंबर निकालिए, और कहीं में भी अगर किसी ने इलीगल बांग्लादेशी को देखा, जो घुसपैठिया है, जो इलीगली इंडिया आ रहा है, त्रिपुरा आ रहा है, तो इमीडिएटली उस हेल्पलाइन नंबर को हम लोगों को बनाना चाहिए, और हमारे कोई भी लोग हो उस नंबर में फोन कीजिए, और हमारा सेंट्रल नंबर वो लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे और कार्रवाई होगा। कानून अपना हाथ में मत लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इलीगली हमारे एरिया में घुस रहा है, इंडिया में घुस रहा है, तो इसको उस नंबर में फोन करके रिपोर्ट कीजिए। और ये नंबर मैंने अपने त्रिपुरा मोथा को बोला है कि अगले 2-3 दिन के अंदर निकलना चाहिए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करेंगे। अगर कोई इलीगली आया है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, कोई भी हो, हम लोग, अगर कोई भी हमारे देश में इलीगली आता है, इट इज अ जॉब टू रिपोर्ट, और इनको पकड़ के बांग्लादेश वापस भेजना है। इससे ज्यादा क्लियर और कुछ नहीं। सो आई एम आस्किंग, मैंने बात भी कल रात किया था, आई एम अगेन आस्किंग कि टाइम बर्बाद मत कीजिए। सिर्फ आंदोलन, प्रोटेस्ट करने से नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप भी क्रिएट कीजिए कि हमारे लोग जो देखते हैं कि इलीगली कोई अंदर आ रहा है, एक फोन उठाकर हमारे नंबर में फोन करें और हम एक्शन लें, रिपोर्ट करें। क्योंकि अगर आज हमने बांग्लादेशी को आने दिया तो कल नौकरी हमारे ही जाएगा, ये लोग हमारे ही खाना खाएंगे, हमारे ही नौकरी छीनेंगे। आज अस्पताल में पलंग नहीं है, हम लोग जमीन में सोना पड़ता हमारे लोगों को, आज वही लोग हमारा रिसोर्सेज लेंगे, और हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम लोग इन लोगों को हमारे देश में, हमारे राज्य में पहले से भी बहुत आया है, इसका फुल स्टॉप करना है। तो एक होकर, मोथा बन के नहीं, बीजेपी बन के नहीं, सीपीएम बन के नहीं, कांग्रेस बन के नहीं,
एक हिंदुस्तानी बनकर हमको रोकना पड़ेगा, एंड वी शुड डू इट। लास्ट, मैं आपको और कुछ बोलना चाह रहा था कि एक मिनट, एक किसी का फोन आया है, एक मिनट। हाँ, कि वी आर इन गवर्नमेंट, बट मैंने अपने मंत्री जी से भी अनिमेश से थोड़ी देर पहले बात किया। मैंने रंजीत নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, এশিয়ান টাইমস।